बाकी क्या? ऑन करो। चलो आपके स्पीकर म्यूट कर लो क्विक। So dear all, welcome. This is our online portal. I am here Professor Rameshwar Gagrani from Gagrani IIT JEE NEET and Foundation. So we have two branches. One is at Shahada and the another branch is at Nasik. Due to the lockdown period, we have started this online portal free of cost. We are not charging a single rupee from any candidate to join us. So you all are welcome. More than 50 to 55 candidates, they are continuously coming. This is live streaming. They are joining. They are continuously attending our lectures, consistently attending our lectures right from the 10th of May. So this is very, please mute your speaker. This is very biggest achievement for us, that maximum students, they are coming day to day to attend our online lectures of Team Gagrani. Professor Gagrani brothers, Professor Rameshwar Gagrani, Professor Someshwar Gagrani, both are teaching you with the team of experts of our Gagrani associates. So we are running foundation course at Shahada as well as at Nasik. We have been taking since 22 years IIT JEE NEET, CET, BITSET, as well as VIT, NATA, etc. So you all are welcome. Let us learn chemistry as it is. हमेशा की तरह हम लोग अभी chemistry सीख रहे हैं, and we are uploading our recorded lectures on YouTube. So you enjoy these lectures. If you feel them good, watch them, realize them, inspect these lectures, and comment yourself. Any improvement, any suggestions from you all, definitely it will be responded positively, and we will improve our teaching skills as well as our whole environment. So you all are welcome. Let us continue to our topic. We have been studying the atomic structure, periodic classification of elements, as well as a little bit chemistry. We need this whole information for IIT JEE NEET because this is totally basic information. Normally basic information is neglected in many places, but as we have to reach to the destination, we are not compromising in any corner of our learning teaching interaction. हमें अपने शिखर पर अगर पहुंचना है, हमें IIT तक पहुंचना है, हमें मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छी जगह पर अगर प्रवेश मिलाना है at free of cost, so there should not be any compromise in learning teaching interaction. Right from grassroots level, we have been teaching you. Remember yourself. You can notice our lectures, you can see, you can realizing, and your comments, the comments themselves, they are speaking. आपके जो comments आए हैं, आपके जो subscription आए हैं, और आपके जो online presence है, यही इस बात के रिसिप्ट है, यही इस बात के हमें खुशी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन आ रहे हैं और गगरानी IIT JEE NEET के कम से कम 5 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। ये बड़ी खुशी की बात है और ये दर्शाता है कि गगरानी IIT का जो झंडा है, जो फ्लैगशिप है, वो बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहा है। सो आप सभी का स्वागत है। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम समझने की कोशिश की, कुछ जगह पर उसमें चेंज भी है। कल कुछ सवाल आपके आए थे, उस सवालों में मैंने बताया था कि कुछ बातें हमें आगे देखनी है, आगे समझनी है। तो उसके पहले हम लोग जो शुरुआत है वो कर देते हैं। सो लेट अस हैव एज इट इज प्रोफेसर रामेश्वर गगरानी, दिस इज अवर ऑनलाइन पोर्टल, दिस इज द केमिस्ट्री लेक्चर।
So chai with Professor Rameshwar Gagrani. थैंक यू। कल हमने समझने की कोशिश की क्या होता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की तैयारी करते हैं। कल हमने कंडेंस्ड फॉर्म समझने की कोशिश की। यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने शॉर्ट कर दिया था, आपको याद है। हमने सिर्फ शेल्स में प्रेजेंट किया था। आप सभी को याद है कि वी हैव ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। नाउ टुडे लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स एंड द रेस्ट पार्ट इज ऑफ यू ऑल। मतलब जैसे कंडेंस्ड फॉर्म मैंने कुछ एलिमेंट्स के आपको बताए सभी को, तो जो बाकी एलिमेंट्स है, जो आगे आने वाले एलिमेंट्स है, उसका प्रैक्टिस आपको करना है। Some students ask me, sir, from where we get this all information? So very simple, you must have the two books, State Board as well as NCERT. आपको 11th साइंस के स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक चाहिए, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ईयर IIT JEE NEET, and we will provide you the notes when the classroom coaching will start. As soon as the classroom coaching will start, we will provide you the notes, detailed notes, where matrix match questions will be there, match the pairs questions will be there, true and false question will be there, integer type questions will be there, whirlpool problems will be there, single correct answer question will be there, multiple correct answers questions will be there. तो इस सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको IIT एडवांस में भी पूछे जाते हैं, आपको नीट में भी पूछे जाते हैं, तो ये सारे विद सॉल्यूशंस, विद डिटेल सॉल्यूशंस. There are two ways we have. One is a complete modules in what you can say that 4 to 6 lessons are in one module. In this way we have the modules. Second way is what these are topic wise notes, and third one is what booklet 1, booklet 2. So सभी फॉर्मेट में हमारी नोट्स गगरानी IIT JEE NEET की लेटेस्ट सिलेबस 2020-2021 पर जो अभी फ्रेम की गई है वो अभी उपलब्ध है. So when classroom coaching will start, you will get all this information, all these notes. But right now you will have to use the 11th science textbook as well as NCERT textbook. आपको अभी यह यूज करना है, इसका ध्यान रहे. जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आप अगर पढ़ोगे तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें आपको मिलेगी. जिसमें आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ोगे तो जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है पीरियोडिक टेबल के माध्यम से वो आपको वहां मिलेगी. तो मैं चाहूंगा आप सभी को ये बातें समझ रही है. तो मैंने कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कंडेंस फॉर्म में सिखाया. अब हमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, शेल्स के साथ सब शेल्स में, और सब शेल के साथ हमें ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. सो लेट अस सी वन बाय वन. हम कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर देखेंगे, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद कुछ आपके जो सवाल जवाब होते हैं उसके तो जवाब हम लोग देखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग वैलेंसी सीखेंगे. वैलेंसी सीखने के बाद फिर हमें कंपाउंड फॉर्मेशन भी समझेगा. तो द रिमेनिंग पार्ट इज ऑफ यू. आपका बाकी पार्ट है, आपने बाकी एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है. मैं एलिमेंट्स की तरफ पढ़ रहा हूं. देखो मैंने कल लिखा था, आपको हाइड्रोजन बताया था, तो ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया, शायद आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है. ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, इसका सिंबल है H, इसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 1. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. Yes, this is entered into the first shell. So how you will write? Now this electron, what I wrote on the board, what I have written on the board. Now how it will enter into the principal shell, sub shell. यह जो इलेक्ट्रॉन है प्रिंसिपल शेल में कैसे जाएगा और सब शेल में फिर आगे कैसे जाएगा और ऑर्बिटल में कैसे जाएगा. सो लेट अस राइट इट. जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो मैं कलर बदल रहा हूं. यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, मान लो दिस इज द फर्स्ट शेल 1s. दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल शेल. This is a subshell S, and I am showing here electron by black color 1s1. थोड़ा ठीक से देखो, आप अगर भी ठीक से समझोगे तो यहाँ पर समझेगा. दिस इज प्रिंसिपल शेल. मैंने ये आपको JPG इमेज और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताया था. कुछ दिन पहले हमने ये सारा ऑनलाइन देखा भी था, आपको सभी को याद है मेरे हिसाब से, आप सही समझ रहे हैं. So this is what 1s1. This is 1s1. Remember yourself. Okay, आप थोड़ा चैट अगर बहुत आवश्यक है तो चैट करो, बाकी चैट अभी मत करो. आप ध्यान दो. मैं चाहूंगा आप में सभी में बहुत उत्साह है क्योंकि आप गगरानी से ज्वाइन हो.
तो मैं चाहूंगा कि आप आपका उत्साह जो है अभी बोर्ड पर करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टीचिंग। आप कभी भी ध्यान में रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जब टीचर पढ़ाता है तो आप 100% बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। when teacher is teaching you, when he is teaching on the board, so when whatever he is dictating you, whatever he is teaching you and speaking, so you must listen carefully and concentrate on the board. बाकी आप अभी चैट मत कीजिए। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ये आपको समझा है क्या? दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर, this is the condensed form of the electronic configuration of hydrogen because hydrogen is taken, and this is what principal quantum number, blue color में मैं आपको principal quantum number शो कर रहा हूँ। small s ये जो है ये सब शेल की बात बता रहा है, और you can say even orbital, and this one is a electron. ये this figure is already I have explained you. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो रिप्रेजेंट कैसा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऊपर अगर आपको ध्यान में आ रहा है, n is a principal quantum number, s is the subshell, s is the subshell, it may be s, it may be p, it may be d, it may be f, ये हो सकती है। और यहां पर जो मैं इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं, this is electron, this is electron or electrons, this is the presentation of any electronic configuration, principal quantum number, subshell, orbital, subshell, orbital, and because the names of the orbital themselves, that is subshells, जो सबशेल के नाम है वही तो ऑर्बिटल के, इसलिए मैंने ये बताया। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन शो करें। मैं दूसरा एग्जांपल ले ले रहा हूँ, अब मैं कलर बदलते जाऊंगा, आप ध्यान में रखो। आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, हीलियम। आप बिल्कुल ध्यान दोगे, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2। देखिए आपको ध्यान में आ रहा है, its electronic configuration is 1s2 because the 2 electrons of helium, they will enter into the first shell. The capacity of first shell is 2 electrons. Capacity of first shell is 2 electrons. That's why they will first enter into the first shell. As capacity of first shell is 2 electrons, in that first shell, S subshell is present. In that first shell, S subshell is present. Its capacity is 2 electrons. So we can put the 2 electrons in the S subshell. Moreover, these 2 electrons will enter into the s orbital, and the capacity of s orbital is 2 electrons. Capacity of s orbital is 2 electrons. Remember yourself. देखो आपको ध्यान में आ रहा है क्या? ये आपको डाउट है क्या, मुझे पूछो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं थर्ड ले रहा हूँ यहाँ पर, हीलियम के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लिथियम, ले लेता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। So number of electrons are 3, 1s2। अब यहां पर मैं अगर 3 लिखूं, 1s3, then it is wrong. Remember yourself. Why it is wrong? Because the capacity of first shell is only 2 electrons. हमें सभी को पता है कि capacity of first shell 2 electrons का। अब these 2 electrons will enter into the s subshell, which is a part of first shell, and the capacity of s subshell is only 2 electrons, and there is no furthermore subshells in the first shell. So obviously the third electron out of these 3, 2 electrons will enter into the s subshell, and the third will promote to the second subshell. जो थर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है वो सेकंड सबशेल में चले जाएगा। आप ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर ये जो है, दिस इज रॉन्ग, रिमेंबर दिस इज रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई आई एम नाउ रिप्लेसिंग दिस। जो आपको मैं बता रहा था यहाँ पर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से नहीं आएगा, इसको मैं करूंगा यहाँ पर 1s2, 1s2, 2s1। अब सेकंड शेल में चले गए हम लोग। आपने ठीक से समझा है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट शेल, the 3 electrons of lithium, out of 3 electrons, 2 electrons will enter into the first shell because the capacity of first shell is only 2 electrons. So remaining 1 electron will promote to the second shell. So this is second shell. Now in second shell there is also s subshell, s and p. अगर मैं लिखूं तो 2s 2p होगा। सेकंड क्या है? This one is a 2s and this one is a 2p. This is second shell. Remember yourself. But there is no further more electrons. We have not more number of electrons. हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 2p क्या होगा? 2p 0 हो गया। जब 2p 0 हो गया तो there is no need to write 2p because p ऑर्बिटल टोटली वैकेंट है, तो उसकी जरूरत नहीं। जब एम्प्टी चेयर्स है तो उसको उठा लो भाई, एम्प्टी चेयर से तो उसको उठा लो, तो मैंने वो निकाल ली। तो यहाँ पर आपको अभी ध्यान आ रहा है 1s2
2s1. This is the electronic configuration of lithium. This is the electronic configuration of lithium, atomic number 3. जिसका atomic number 3 है उसका electronic configuration आपके सामने 1s2 2s1. क्योंकि सेकंड शेल में 2s और 2p है, सेकंड शेल में s सब शेल है, सेकंड शेल में p सब शेल है. आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं. सेकंड शेल में s सब शेल है, सेकंड शेल में p सब शेल है, तो मैं 2s और 2p लिखूंगा. लेकिन मेरे पास उतने नहीं, मैंने दिया. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और. आपका स्पीकर म्यूट करो प्लीज. आई एम गोइंग नाउ फर्दर. देखो आपको समझ रहा है क्या? आपको सभी को समझ रहा है क्या? कैन यू सिग्नलाइज मी? आपको समझ रहा है? yes, समर्थ समझता है? गुड. निशांत? ओके गुड गुड. लेट अस गो अहेड. हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम. 4. There are 4 electrons in the beryllium because the atomic number of beryllium is 4. Atomic number जो है beryllium का ये 4 है. आप सभी को ध्यान में आ रहा है, ठीक है ना? The atomic number of beryllium is 4. जब beryllium का atomic number 4 है तो मैंने 4 electrons किस तरह से रखे हैं? As it is this is the first shell in which this s subshell is present, so I shall put 2 electrons there. Then remaining 2 electrons will go to the second shell to s2 because the capacity of s subshell is 2. So wherever you find s, only 2 electrons can be accommodated there. Wherever you find p, only 6 electrons can be accommodated there or less than 6. Wherever you find t, only 10 electrons can be accommodated there or less than 10. Wherever you find f subshell, जहां भी आप f subshell लिखोगे आप वहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो या फिर 14 से कम रख सकते हो. AsPDF. अगर G की बात आ जाती, G सबशेल की, तो वहां के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? फिर सीधी बात है 18 आ जाएंगे. G सबशेल में आप 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो या फिर 18 से कम रख सकते हो, 18 से कम. फिर H सबशेल आ गई. H सबशेल में आप 22 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो या फिर 22 से कम. एंड who tells all these things? कौन बताता है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है ड्यू टू द ऑर्बिटल्स. क्योंकि G सबशेल में 9 ऑर्बिटल्स है, H सबशेल में 11th ऑर्बिटल से, बराबर ना? G सबशेल में हमारे पास 9 ऑर्बिटल से, इसीलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी. बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. हमें सभी को पता है कि ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. और G सबशेल में अगर 9 ऑर्बिटल से तो कितने हो गए? 9 into 2 18 हो गए. H सबशेल की बात कर लेते. H सबशेल में अगर मैं एज़ोमिथल क्वांटम नंबर L की बात करूं तो H सबशेल के लिए कोई वैल्यू तो डिस्क्राइब होगी. L सबशेल के लिए वैल्यू डिस्क्राइब होगी. वो क्या होगी? L सबशेल के लिए हाउ मच इट विल बी? जैसे S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, बराबर ना? AsPDF. G के लिए 4, H के लिए 5 हो गए. जब 5 is the value for H subshell, 5 is the azimuthal quantum number, that is L value. L describes the value for H subshell 5. So minus 5 to plus 5, 11 digits you will get. And when 11 digit you will get, 11 into 2, that is 22. That is the capacity of H subshell. So wherever you will get these subshells, remember, ये बात बिल्कुल यहाँ पर भी S होगा, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं. आपके सामने कहीं भी ऐसा अगर दिखता है तो 2 के ऊपर आप नहीं रख सकते. P अगर सबशेल अपीयर हो जाता है तो आप 6 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते. D सबशेल अपीयर हो जाता है तो आप 10 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते. F सबशेल के लिए आप 14 या 14 से कम रख सकते. G सबशेल के लिए आप 18 या 18 से कम रख सकते. H सबशेल के लिए आप 22 या 22 से कम रख सकते हैं. ये बिल्कुल तय है. ये हमने इसके पहले बहुत सिस्टमेटिकली सारे हमारे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में बिल्कुल सही तरीके से पढ़े हैं. आपको सभी को याद है, राइट है ना? आपको सभी को याद है. बिकॉज वी आर लर्निंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, और हमारी हर टॉपिक ग्रास रूट लेवल पर ही होते हैं, इसका ध्यान रहे. ये ऑनलाइन सेशन है, ठीक है, ऑनलाइन हमें आना पड़ा, लेकिन क्लासरूम कोचिंग में हर लेसन 100% ग्रास रूट लेवल पर ही होता है, और वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है और आखिरी तक चलता है. इसीलिए हर स्टूडेंट को जस्टिस मिलता है. लेट अस सी नेक्स्ट वन. बेरिलियम मैंने आपको समझाया. बोरॉन, आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना जरूरी है. बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2
4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो 2p में इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, क्योंकि सेकंड शेल में 2s और 2p है। सेकंड शेल में 2s और 2p है। सेकंड शेल का क्या है? सेकंड शेल में s और p है। यू नो फर्स्ट शेल में s सब शेल है। आप सभी मेरे तरफ देखेंगे और बोर्ड की तरफ देखेंगे, आप और कुछ नहीं करेंगे, ना आपको कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ बोर्ड के तरफ देखेंगे। मैंने शुरुआत वहां से की थी और मेरी आवाज आप तक बिल्कुल सही पहुंचनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर मेरे पास सेकंड शेल है तो सेकंड शेल का कैपेसिटी मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, और सेकंड शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल? In second shell, there are 2 subshells, namely S subshell and P subshell. And as usual, we know the capacity of S subshell is 2 electrons only. It will not exceed 2 electrons. वो 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती. And P subshell, it has a capacity of 6 electrons. No matter where they are present, whether they belongs to the second shell, whether belongs to the third shell, whether they belongs to the fourth shell, वो कहीं भी हो, लेकिन उनका कैपेसिटी फिक्स है. रिमेंबर योरसेल्फ, उनका कैपेसिटी फिक्स है भाई। हाँ, हमारा कैपेसिटी फिक्स नहीं होता है। घर पे सादी दाल रोटी बनी तो हम लोग है ना मुंह बना के हम लोग 2 रोटी खा लेते हैं। वही हम लोग कहीं पार्टी मिले ना भाई, तो फिर तो हम लोग 2-3 थालियां मंगा लेते हैं, क्योंकि पार्टी कोई फ्रेंड देता है ना, हमें स्पेंड नहीं करना है, तो वहां तो हमारा कोई कैपेसिटी का सवाल ही नहीं होता। और एक बार फ्रेंड ने पार्टी देने के बाद वो फिर से ना पार्टी देने के मूड में नहीं होता है, वो देख लेता है बिल, एक्सपेक्टेड करता है 700 रुपए आएगा, बिल आएगा 3000 रुपए, फिर वो कैलकुलेट करता है। तो आपको समझ रहा है व्हाट आई मीन टू से? सब शेल्स जो है एसपीडीएफ, ये किसी भी शेल्स में हो, उनका कैपेसिटी नहीं बदलेगा। जो ऑर्डिनरी स्टुडंट आहे उन्होंने ठीक से सुनना बेटा, सब शेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन आपण ठेवत आहोत त्यांची कॅपॅसिटी कधीच बदलत नाही। एस मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन ठेवू शकतो, तर जिथेही एस येईल 2च्या वर तुम्ही ठेवू शकत नाही। जिथं पी येईल, पी सब शेल येईल, हे सगळे सेकंड लेटर आहेत। पी सब शेल येईल तिथं 6चा वर इलेक्ट्रॉन आपण ठेवू शकणार नाही। जिथं डी सब शेल असेल तिथं 10चा वर इलेक्ट्रॉन आपल्याला ठेवता येणार नाही, त्याचा खाली ठेवता येतील 10 और लेस देन 10। व्हेन देयर इज एफ सब शेल, जब आपके पास एफ सब शेल हो गए तो आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, या फिर 14 से कम। और जब आपके पास जी सब शेल अपीयर हो जाती है तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, या 18 से कम रख सकते हो। जब आपके पास एच सब शेल अपीयर हो जाएगी, किसी भी प्रिंसिपल शेल से कनेक्टेड हो, वो भले फर्स्ट शेल में हो, सेकंड शेल में हो, कहीं भी हो, तो उनके जो सिग्नलाइज है, उनके जो कैपेसिटी उसके बाहर वो नहीं जाएगी। मैं ये बता रहा था, अगर मैं बोरॉन लूं, बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 है, तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर 5 प्रोटॉन भी, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हाउ आई डिस्ट्रीब्यूटेड दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, सब शेल्स, एंड हेंस later on orbitals. To 1s2, capacity of first shell is 2 electrons, so that's why I kept here 2 electrons only. The capacity of second shell is 8 electrons, but I have not that much of electrons. I have only 3 electrons. 2 are enclosed here, so 3 electrons now left. These 3 electrons will promote to the second shell, but the capacity of second shell is 8 electrons. But as we have less than 8 electrons, we can put in the second shell also. प्लीज आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो। देखो 1s2 2s2, इसका कैपेसिटी खत्म होगा एस सब शेल का, मैं 2p में चला जाऊंगा। नाउ आई हैव एंटर्ड हियर 2p2, सॉरी 2p, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, 2p1 आ गया। नाउ व्हाई आई हैव रिटन हियर 2p1, बिकॉज़ आई हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू बी अकोमोडेट। 4 तो हमने यहां रख लिए, देखो ये 2, ये 2, 4 हो गए। आउट ऑफ 5, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर distributed like this. Now 1 electron is left, so what it will be? It will enter into the p subshell, but of which shell? It will be of second shell, because 2s and 2p, second shell contains s subshell as well as p subshell. The capacity of s subshell is all in second shell, and therefore the remaining electron will promote to the second shell. In that it will go to this p subshell, वो p subshell में चले जाएगा। अब p subshell की कैपेसिटी हमें सभी को पता है 6 इलेक्ट्रॉन की। The capacity of p subshell is 6 electron, but we have only 1 electron, so we put there like this 2p1. देखो आपको समझ रहा है, आपको सभी को समझ रहा है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये ऑर्बिटल में अगर मुझे, if I want to put in orbitals, अगर मुझे ऑर्बिटल में रखने, तो मैं ऑर्बिटल डायग्राम निकल रहा हूं, you can see it। क्यों? क्योंकि ये जो है, इसको मैं ऑर्बिटल में अगर कंसीडर करूं तो किस तरह से होगा। Look at this, this is
1s2, 2s2. Now this is 2px1 actually. ये 2px1 है. ये क्यों 2px1 है? क्योंकि p ऑर्बिटल जो है इनके शेप डम्बेल के हैं. आपको सभी को याद है s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, लेकिन p ऑर्बिटल जो ये डम्बेल शेप है, राइट है ना. एंड देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स विद 2 लोब्स ईच. वहां पर 3 p ऑर्बिटल है. क्यों 3 p ऑर्बिटल है? क्योंकि p सबशेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. एंड अकॉर्डिंग टू द एज़ोमिथल क्वांटम नंबर l, द वैल्यू ऑफ p इज 1. एज़ोमिथल क्वांटम नंबर l की वजह से वैल्यू ऑफ p उसने 1 डिस्क्राइब किया है. सो -l to +l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स यू अबाउट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में. तो वो स्टार्ट होता है -l से +l तक. जब वो -l से +l तक शुरू होता है तो 1 का वैल्यू डिफाइन करो, -1, 0, +1. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? वहां पर 3 डिजिट आए हैं. जब 3 डिजिट आए तो देयर शुड बी 3 ऑर्बिटल्स फॉर p सबशेल. और जब p सबशेल के 3 ऑर्बिटल है जहां पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं. एक्सक्यूज मी, थोड़ी बाहर की आवाज आ रही थी इसलिए मैंने वो बंद कर दिया. देखो आपको समझ रहा है क्या? आपको सभी को समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आप बिल्कुल मेरे तरफ देखेंगे और यही ध्यान देंगे बोर्ड पर. आप आपसे आपस में बात ना करें. व्हाट आई एम सेइंग यू राइट नाउ, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? क्या p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स है. p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल है. p या सबशेल मध्ये 3 p ऑर्बिटल आहेत, px, py and pz. The capacity of each orbital is only 2 electrons. So the capacity of px orbital is 2 electrons. The capacity of py orbital is also 2 electrons. The capacity of pz orbital is also 2 electrons. It has a dumbbell shape with 2 lobes each. ये जो px, py, pz है, ये जो आपके सामने 3p ऑर्बिटल्स है, जो px, py, pz के नाम से आपके सामने आ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू वन अनदर है. px, py, pz means x axis, y axis and z axis. These are perpendicular to one another. They are not parallel. इसका ध्यान रहे. Each dumbbell means each p orbital has a dumbbell shape. It has a 2 lobes. तो there are in total how many lobes? कितने lobes हो गए फिर? अगर मैं p सबशेल की बात करूं और उसके पास 3 p ऑर्बिटल है, so total lobes are 6. क्योंकि एक अपर लोब, एक लोअर लोब, एक प्लस, एक माइनस. सो इन टोटल देयर आर 6p. इन टोटल देयर आर 6p लोब्स ऑफ p ऑर्बिटल्स, एक प्लस एक माइनस. राइट है ना? यहां तक आपको बिल्कुल सही समझ गया है. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो मैं अभी इसीलिए मैंने 2px1 कर दिया. क्यों? क्योंकि px की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की. सो व्हाट आई रोट हियर 2px1. मैंने यहां पर 2px1 लिख दिया. क्यों? क्योंकि एक 2px2 है ना, तो लेकिन मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन. सो आई हैव रिटन हियर 2px1. देखो 1s2, 2s2, 2px1. अब मैं और नेक्स्ट ले रहा हूं यहां पर कार्बन. बोरान तक हो गया, आपको बिल्कुल दिख रहा है. नाउ लेट मी टेक अनदर वन. कार्बन ले लेता हूं. कार्बन atomic number 6, therefore it has a 6 electrons. Let me write it electronic configuration. मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं. थोड़ा यहाँ पर लिखने के लिए नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं. अब मैं कार्बन ले रहा हूं. कार्बन एटॉमिक नंबर 6. अब ध्यान दो, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट देम? 1s2, 2s2, 2p2. अब ठीक से ध्यान दो. क्यों? क्योंकि सेकंड शेल में s और p सबशेल है. सेकंड शेल में s और p सबशेल है. तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं इसको यहां लिख दूं ऐसा 1s2 और p2, ऐसा अगर मैंने लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है? मैं लिख सकता हूं क्या? ऐसा नहीं लिख सकता. क्यों नहीं लिख सकता? Why I cannot write like this? Because this misguides us. This does not indicate you whether it is of second shell or else. यह जो आपने विदाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है तो इसका मीनिंग नहीं बनता है.
क्योंकि विदाउट क्वांटम नंबर, विदाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यू कैनॉट एंटर इनटू द, यू कैनॉट पुट द इलेक्ट्रॉन्स। विदाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। आप मेरी बात बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विदाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मेन एनर्जी लेवल के बिना या स्टेशनरी ऑर्बिट के बिना आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे कैसे? मतलब मैं अगर सोसाइटी में रहता हूं जहां पर वेरियस अपार्टमेंट्स है, मेरी बात ठीक से समझ लो, और विदाउट एंटरिंग इनटू द अपार्टमेंट मैं सीधी छलांग लगा रहा हूं और मेरे फ्लैट में जा रहा हूं, तो भाई बहुत जोर से गिरूंगा ना। So that's why I have to enter into the apartment first and then I have to go to my flat or my house. पहले तो मुझे अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल शहरों में आपने देखा है तो बिग अपार्टमेंट्स होते हैं. So there are various flats in the apartments, and then when there are various flats in the apartments, I cannot jump from the ground to the direct my apartment if it is in 10th story. So what is there? I have to first enter into the apartment and then through lift or through ladders I have to reach to my flat. थोड़ा ध्यान रहे. आपकी आवाज आ रही है? आप थोड़ा आपका आवाज रुका लो. प्लीज म्यूट योर स्पीकर्स. मेरी बात आप सभी को ठीक तरह से समझ रही है? आपको कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर मेरा HD कैमरा है, ड्यू टू द लाइट सेंसेशन ये वीडियो ब्लैक कभी कभी दिखेगा आपको. मैं कोशिश करूंगा कल से HD कैमरा एडजस्ट करने की. वैसे मैं आपको सभी को बता दूं कि आपको मेरे यहाँ पर इमेज आपको भले मेरी ब्लैक दिख रही है, बट फॉर यूर ऑल विशेष एंड ऑफ योर गार्डियंस ब्लेसिंग्स आई एम हैंडसम. थैंक यू. मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर फेयर है, कलर इज फेयर, डोंट बॉदर अबाउट इट. यहाँ पर ध्यान दो सर. हाँ यस, पूछो. सर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2px raised to 2 लास्ट में कार्बन के. हाँ, मैं